Good morning students. Today I am here with another video on flamingo, lesson number 1 of class 12, the last lesson. You might remember that when we were doing the lost spring, I had told you what irony is. Irony is what we are saying but we mean exactly the opposite. So the name of the lesson is the last lesson, but this is the first lesson of flamingo. So, before we begin, let me tell you something about the author. The name of the author is Alphonse Daudet, and his period is 1840 to 1897. He lived only for 57 years, but he was a great French novelist. He wrote many short stories also and is famous as a short story writer. This story, the last lesson which we are doing, is set in the days of Franco-Prussian War, which was held in 1870 to 71. In this war, France was defeated by Prussia, and Prussia consisted of these three major countries: Germany, Poland, and Austria. So now, when we begin with the story, there are two main characters which we have to remember, and they are M. Hamel and friends. Students, we are not going to write Mr. before M. Hamel because M in French is Monsieur, and that means Sir or Mr. So we are only going to write M. Hamel. So main two characters are M. Hamel and friends. And when the story begins, we find that Franz was a little late to the school. He went to the school of M. Hamel. M. Hamel was his teacher, his French teacher, and he was a little late for the school that day. Now, there were two reasons why he was late. He did not want to go to school because his teacher was taking a test on participles, and Franz did not know a single word about it. Secondly, he wanted to remain in the home only because there were so many temptations, and the temptations were that the birds were chirping on the trees, the day was bright and warm, and third, the Prussian soldiers were drilling. तो वो जो Prussian soldiers drill कर रहे थे वो जाना ही नहीं चाहता था because he wanted to see them. आप लोग जब हम लोग 26 जनवरी को परेड देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं हम उनके फेस में इंटरेस्टेड नहीं होते, जो लोग भी ड्रिल कर रहे होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, जब वो ड्रिल कर रहे होते हैं, जो अलग अलग रेजिमेंट के लोग होते हैं, तो हम सिर्फ क्या चीज़ देखते हैं, उनके लेग मूवमेंट और उनका हैंड मूवमेंट. हम वो देखते हैं कि किस तरह से उनके पैर आगे जा रहे हैं और कितनी उनकी सिंक्रोनाइजेशन है, एक साथ उठ रहे हैं पैर, कोई भी गलती नहीं कर रहा. तो जब हम अपने इतने बड़े होके हम इस चीज़ को देखते हैं और वो हमें इतना अट्रैक्ट करती है, तो फ्रेंड्स वॉज अ लिटिल चाइल्ड. तो उसके लिए जो टेम्पटेशंस थी कि दिन बहुत ही ज़्यादा साफ़ था. फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, व्हेन द सन इज़ शाइनिंग, तो ये भी एक टेम्पटेशन है कि भाई आज बहुत अच्छा दिन है, आज बर्फ़ नहीं पड़ रही है, आज पूरा ब्राइट है. तो उसके तीन रीजंस थे: द बर्ड्स वर चर्पिंग ऑन द ट्रीज, द डे वॉज ब्राइट एंड वार्म, एंड द थर्ड, प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. But somehow then he started, but on his way to school he found there was a town hall. Town hall क्या होता है? घंटा घर. ये सब नहीं सुना होगा, हर जगह होता है घंटा घर, जहाँ पे एक बड़ा सी क्लॉक लगी होती है. तो घंटा घर एक्चुअली द टाउन हॉल इज़ द मेन प्लेस. तो ये टाउन हॉल में जब वो जाता है वहाँ पे, तो टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड भी था. और वो बुलेटिन बोर्ड का क्या इम्पोर्टेंस थी कि सिंस लास्ट 2 years व्हेन द वॉर वाज गोइंग ऑन, बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ आ जाती थी, एंड एवरीबडी कलेक्टेड ओवर देयर, गैदर्ड देयर टू लिसन टू रीड द न्यूज़. और 2 सालों से बहुत ही ऐसी न्यूज़ आ रही थी जो कि बहुत डिप्रेसिंग न्यूज़ थी. द न्यूज़ अबाउट द लॉस्ट वॉर, लॉस्ट बैटल्स, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, द ड्राफ्ट्स, ये सारी न्यूज़ थी. तो जब वो स्कूल जा रहा था, ऑन हिज वे टू स्कूल, क्या होता है, फ्रेंड्स देखता है कि सो मैनी पीपल हैव गैदर्ड अराउंड द टाउन हॉल एंड दे वर लुकिंग समथिंग एट द बुलेटिन बोर्ड. ही वॉज वंडरिंग व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे. बट ही देन thought that I am getting late for the school, so I have to reach there in time.
तो वो वहाँ के लिए जब स्टार्ट कर भाग रहा होता है तो उसको रास्ते में जो ब्लैक स्मिथ है वो उसको रोकता है और उसको पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दैट एंड ही हरीड ऑफ टू द स्कूल. बट the main thing is, and this question also comes in your CBSE exams, is what was unusual on that day. जब वो स्कूल पहुंचता है तो क्या असामान्य बात थी बेटा. यूजुअली क्या होता था स्कूल में, जैसे हमारे स्कूल्स में होता है, इंडिया के स्कूल्स में होता है, वैसे ही जर्मनी में कहीं पे भी चले जाइए, चाहे यूके हो चाहे यूएसए हो, सब जगह जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं सबका नेचर एक जैसा होता है. तो जनरली क्या होता था कि स्कूल में देयर वाज अ ग्रेट नॉइज़ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती थी. देयर वाज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क. क्या होता है, हम लोगों के स्कूलों में तो जो डेस्क होते हैं उसके अंदर आप लोग बैग रख देते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ एंड इन मैनी प्लेसेस ऑफ इंडिया ऑल्सो, जो डेस्क के ऊपर ही एक बॉक्स होता है, यू ओपन द बॉक्स, यू कीप योर बैग इन दैट एंड देन यू क्लोज द बॉक्स. और वहाँ पे एक लॉक भी होता है जो आपका पर्सनल होता है, आप लगा सकते हैं. तो जनरली वहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क इसकी आवाज़ आती थी. लेसन्स विच वर रिपीटेड इन यूनिसन, टीचर बोल रही हैं और बच्चे उस चीज़ को पीछे पीछे ड्रिल कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. बच्चे अपने कानों पे हाथ रख रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से लाउडली बोल रहे हैं, बिकॉज दे वांटेड टू लर्न दैट, टीचर वांटेड टू ड्रिल. तो वहाँ पे वो अपने हैंड ओवर ईयर्स रख लेते थे. एंड देन द टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. टीचर ने रूलर उठा रखा है, जो भी बच्चा कोई ऐसी बात कर रहा है तो रैप कर रहे हैं वो टेबल पे. तो इस तरह की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती थी. But that day everything was quiet. It looked as if it was Sunday morning. Sunday morning का क्या मतलब होता है? Sunday morning also has two repercussions. एक तो ये है कि Sunday morning को everything is quiet. Sunday को कोई भी क्लासेस नहीं होती हैं स्कूल में, जहाँ पे भी स्कूल होते हैं वहाँ एकदम से शांति होती है. तो Sunday morning का वहाँ पे बिल्कुल शांति थी. और सेकेंडली हम इस चीज़ को उससे भी रिलेट कर सकते हैं दैट ऑन संडे पीपल गो टू चर्च, द क्रिश्चियंस गो टू चर्च एंड प्रे देयर. तो वहाँ पे भी बिल्कुल शांति होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस. तो जब वो वहाँ पे पहुँचता है फ्रेंड्स, तो उसको लगता है एज इफ इट इज़ संडे मॉर्निंग, नथिंग इज़ देयर. तो वो धीरे धीरे जाके ही फाउंड दैट द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. ही पीप्ड थ्रू द विंडो और देखता है एवरीबडी सिटिंग इन द प्लेस. और उसके बाद में वो धीरे से, ही हैड थॉट कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी आसपास, तो मैं अपने डेस्क पे जाके बैठ जाऊंगा अननोटिस्ड, कोई मुझे नोटिस ही नहीं करेगा. पर यहाँ पे तो डिफरेंट ही स्टोरी थी. सब लोग बहुत शांत बैठे थे, द स्टूडेंट्स वर ऑल्सो क्वाइट. सो ही हैड टू टेक द परमिशन एंड गो इनसाइड एंड सिट ऑन हिज डेस्क. ही फेल्ट ब्लश्ड, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने जाना, वो जाता है और वो बैठ जाता है, अपने डेस्क पे चला जाता है. And then when he raised his hand, he found that M. Hamill was wearing a different dress on that day. उनकी जो ड्रेस थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी. फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, ग्रीन कोट पहना था, सिल्क कैप पहनी थी ब्लैक, और पूरा एम्ब्रॉयडर्ड था उनका. This dress M. Hamill used to wear on his inspection and prize distribution days. तो उनके लिए ये बात, उसको बहुत हैरानी वाली बात थी कि व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, आज क्या हो रहा है, आज क्यों इन्होंने ये ड्रेस पहनी है, क्योंकि ना आज तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना इंस्पेक्शन है. एंड देन ही फाउंड द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस. दिस वाज आल्सो अनयूजुअल. बहुत ही अनयूजुअल चीज़ थी. ये क्यों हो रहा है, ये विलेजर्स यहाँ पर आके क्यों बैठे हुए हैं. और विलेजर्स में कौन कौन बैठा था? हॉसर था, ओल्ड हॉसर. तो हॉसर कैन बी द सरनेम ऑफ ए पर्सन, और हॉसर का मतलब ये भी होता है अ पर्सन हु प्रोटेक्ट्स, ठीक है, जो सिक्योरिटी देता है, उसको भी हम हॉसर कहते हैं. देन देयर वाज फॉर्मर मेयर, और वहाँ पे फॉर्मर पोस्टमैन भी था. बहुत सारे विलेजर्स बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे. सो दीज वर द अनयूजुअल थिंग्स विच वर हैपनिंग. जो मैंने आपको बताया था कि CBSE एग्जाम में दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स दैट व्हाट वाज अनयूजुअल ऑन दैट डे. तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि अनयूजुअल क्या था, यूजुअली क्या होता था, और अनयूजुअल क्या था. यूजुअली में आप सारा बताएंगे कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स बीइंग रिपीटेड इन यूनिसन, और उसके बाद टीचर्स रूलर रैपिंग द टेबल एंड M. Hamill. और जो अनयूजुअल था, आज इनमें ये सारी चीज़ें मिसिंग थी वहाँ पे. ऑल दीज थिंग्स वर मिसिंग.
और जो वहाँ पे विलेजर्स बैठे हुए थे, एंड एम हैमिल वॉज वियरिंग ए डिफरेंट सूट। सो वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। अब एम हैमिल ही वॉज पेसिंग अप एंड डाउन द रूम। पेसिंग अप एंड डाउन मतलब चक्कर लगा रहे हैं रूम में, और काफ़ी वो टेंस दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं एम हैमिल। देन ही माउंटेड ऑन चेयर, और उन्होंने पहले उसको बोला फ्रेंड्स को कि कम ऑन फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। ये एक सरकाज़्म है कि तुम इतना लेट आए हो, हम तो तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। अ पोलाइट वे ऑफ स्कोल्डिंग अ पर्सन। ठीक है, सपोज आप बैठे हुए हैं रूम में, एंड एवरीबडी, द लेसन इज़ टू स्टार्ट एट 9 AM शार्प, एंड एवरीबडी हैज़ गैदर्ड अराउंड 8:55 to 9, एवरीबडी इज सिटिंग इन द प्लेस, बट अ बॉय ही कम्स एट 9:10, and when he enters, the teacher claps his hands and says, thank you, you have come. So this is a sarcasm, but this is a polite sarcasm. तो ये चीज़ जो थी उन्होंने फ्रेंड्स से कहा, फ्रेंड्स यू हैव कम, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही हम लेसन शुरू करने वाले थे। तो फ्रेंड्स को समझ में आ गया कि ही इज़, बिकॉज मिस्टर हिज टीचर ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, तो उसको लगा कि ये मुझे डांट नहीं रहे आज, ही इज़ बीइंग वेरी पोलाइट, बट वो जो सरकाज़्म है वो इन्होंने मुझे बता दिया, दैट ही इज़ वेरी मच अनहैप्पी कि मैं इतना लेट क्यों आया हूँ। एंड देन उन्होंने ही माउंटेड ऑन अ चेयर एंड ही सेड दैट दिस डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ माई लास्ट लेसन, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल नॉट बी टीचिंग यू, एंड इंस्टेड ऑफ फ्रेंच टीचर विल टीच यू जर्मन। और जर्मन में क्या था कि उन्होंने ये बताया दैट द ऑर्डर्स हैव कम फ्रॉम बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है। उन्होंने कहा बर्लिन से ये ऑर्डर्स आए हैं दैट इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन German would be taught instead of French. So today this is the last lesson of French that I am teaching you. And he was very upset as he was saying it. His voice was very serious. It was so grave. He was so sad. He was looking so much disheartened. आप imagine करिए, एक टीचर जो पढ़ा रहा है और वो बच्चों को बता रहा है कि टुडे इज़ माई लास्ट डे एंड माई लास्ट लेसन, तो वो कितना इमोशनली, आप उसको फील करिए कि वो कितना ड्रेन्ड आउट हो रही होगी उसकी एनर्जी, कितना इमोशनली वो ड्रेन्ड आउट हो रहा होगा कि उसने ये बात बच्चों को बोली। एंड फ्रेंड्स सेड दैट व्हेन ही सेड दिस थिंग्स इट लुक्ड एज इफ इट वाज ए थंडर क्लैप। थंडर क्लैप मतलब ज़ोर से शॉकिंग आवाज़ आई उनकी कि दिस इज़ द लास्ट लेसन, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया बिकॉज टिल नाउ ही सेड दैट आई हैड नॉट लर्न फ्रेंच एट ऑल। कहता मुझे तो फ्रेंच अभी आती ही नहीं थी। आई डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट फ्रेंच, दो फ्रेंच वॉज हिज मदर टंग, पर फिर भी उसको नहीं फ्रेंच आती थी। स्टूडेंट था, नहीं मन लगता था। अब कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना हमारा इंडिया में, हिंदी इज़ आवर मदर टंग, पर कितने बच्चे होते हैं जो 12th में आके भी मात्राओं में गड़बड़ी कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी कर देते हैं, अपनी मदर टंग होते हुए हम उस चीज़ को नहीं समझते हैं। वही हाल जो मैं आपको बता रही थी, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, बच्चों का नेचर एक जैसा होता है। तो फ्रेंड्स को आता ही नहीं था कि कैसे वो फ्रेंच पढ़ेंगे, और वो बोला कि मतलब मैं फ्रेंच पढ़ना स्टॉप कर दूंगा विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस। अभी उसको ठीक से अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज नहीं थी। ही हैड टू, उसके टीचर को पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेना था, बट ही डिड नॉट नो अ सिंगल वर्ड अबाउट इट। और उसके बाद में उसने क्या कहा, उसको लगा कि जो बुक्स जो मेरी अभी तक जो फ्रेंच बुक्स मैं लेकर आता था मुझे इतनी बर्डनसम लगती थी, दे वर सो हैवी टू कैरी एंड आई डिड नॉट वांट टू कैरी देम, दे वर लुकिंग लाइक ओल्ड फ्रेंड्स विच ही डिड नॉट वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम। वो अलग ही नहीं होना चाहता था उन। अब उसको ऐसा लगा कि दीज आर माई डियर फ्रेंड्स, दीज आर माई क्लोज फ्रेंड्स, दीज आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, उसको ऐसा लगने लगा और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। और जो हॉस्टर था वो प्राइमरी की बुक लेकर आए हुए थे जो थे, और वो भी देख के लोगों के जो फेस था उससे उसको समझ में आ गया कि आज इसका मतलब विलेजर्स जो बैठे हैं बैक बेंचेस पे, वो क्यों बैठे हैं विलेजर्स। Villagers were sitting there because this was their way of giving tribute to the French language and the teacher who was serving in their school since last 40 years. M. Hamel was serving the school since last 40 years. His school was in a little garden. उसका स्कूल था, फिर गार्डन था, और उसी में अपस्टेयर्स M. Hamel रहते थे। तो वहाँ पे अब उसको समझ में आया कि why he was wearing
why M. Hamill, his teacher, was wearing a different kind of dress that day which he used to wear on inspection and prize distribution days. उसको समझ में आया कि टुडे इज़ द लास्ट लेसन, इसलिए सर ऐसी ड्रेस पहन कर आए हैं. एंड द विलेजर्स वर सिटिंग देयर. एंड देन M. Hamill said, okay, we are beginning. और उन्होंने फ्रेंड्स का नाम लिया कि फ्रेंड्स, can you tell me a rule about the participle? Friends had thought that I would speak the rule without being interrupted by anything. But as soon as he started, he got mixed up with the first words. उसने शुरू किया और वो शुरू में ही वो अपने डगमगा गया, वर्ड्स उल्टे सीधे बोलने लगा. एंड देन ही हेल्ड हिज हेड डाउन एंड वो ऐसे खड़ा हो गया. एंड M. Hamill said that, friends, this is not your mistake. This is the nature of students. This is the nature of children in Alsace and Lorraine. They always postpone things for tomorrow. वो हमेशा कल के लिए सामान छोड़ देते हैं कि कल पढ़ लेंगे. हमेशा, not today, कल. जैसे हम लोग करते हैं, अभी एग्ज़ाम्स में देरी है. आप लोगों के so many students have a question, madam, from when the board exams will start. तो एक तो ये चीज़ है कि यू आर वरिड, एक है यू आर रिलैक्सड. ओके, अभी नहीं शुरू होंगे मार्च में. यार मार्च में तो अभी तक बहुत सारे दिन हैं, हम पढ़ लेंगे. तो क्या करते हैं, हम पोस्टपोन करते जाते हैं. उस दिन नहीं पढ़ते, अगले दिन के लिए पढ़ते जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की और चिल्ड्रन की सबकी यही आदत होती है कि दे पोस्टपोन एवरीथिंग फॉर टुमारो. एंड लिसन फ्रेंड्स, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट फ्रेंच नाउ. इमेजिन when the Germany people will come here and they will ask you what you will reply, and they will laugh at you that this boy does not know anything about his own mother tongue. और अब ये दूसरों की मदर टंग, अब वो जर्मन सीखेगा क्योंकि जर्मनी ने ओवर पावर कर लिया. अब ये जर्मन सीखेगा पर इसको अपनी मदर टंग नहीं आती. तो कितना ये एम्बैरेसिंग और शेमफुल होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए. एंड देन ही सेड, डोंट वरी, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू. I am also blaming the parents, because parents want their children to work on the mills and the farms and earn money rather than study. वो कहते हैं कि बच्चों को काम करने दो खेतों पे, पैसा कमाएंगे, पढ़ने से तो पैसा आ नहीं रहा. तो इसलिए पेरेंट्स को भी मैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ फॉर नॉट लर्निंग अ लैंग्वेज. एंड ही सेड, व्हाई लीव मी बिहाइंड, इवन द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल. Sometimes I ask you to water the flowers which I have grown in my garden, and sometimes when I have to go for fishing, I give you a holiday. तो कहते हैं for not learning a language, all the three people are responsible: the students, the parents, and the teachers. And this thing is true not only in the context of France, but also in the context of each and every country. हम लोग कितने कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th और 12th में, जहाँ पे ये एक डिवीज़न होती है कि आप संस्कृत लीजिए या हिंदी लीजिए, तो वो बच्चे संस्कृत ऑप्ट करते हैं. मदर टंग के बारे में भी इतना नहीं जान पाते और उसके बाद वो पढ़ना रुक जाता है क्योंकि आगे तो पढ़ ही नहीं रहे हिंदी, तो कैसे समझ में आएगी. सिमिलरली यहाँ पर भी स्टूडेंट्स का यही वाली बात थी कि भाई वो सिर्फ ये बात बोल रहे थे कि ये तीनों लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ओके, आई एम नाउ टीचिंग यू फ्रेंच. ही स्टार्टेड विद द ग्रामर. उन्होंने ग्रामर का पढ़ाना शुरू किया और ग्रामर में उन्होंने whatever he was teaching, friends said that this was the first time in my life that I was understanding grammar so easily. आज से पहले मुझे इतनी ग्रामर समझ ही नहीं आई. आज से पहले मुझे इतनी ग्रामर समझ में नहीं आई, पर वो मैं इतनी ईज़िली मुझे समझ में आ रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज़ सो ईजी, देन वाई डिड आई मिस इट. और उसके बाद में बिकॉज ही वॉज ए चाइल्ड, ही वॉज ए मे बी अ ब्रिलियंट चाइल्ड, तो उसको ये भी साथ में उसने अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि मे बी एम हैमिल इज़ टीचिंग विद अ लॉट ऑफ पेशेंस. इतने पेशेंस के साथ में एम हैमिल पढ़ा रहे हैं, तो मे बी ये जो है इसीलिए मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझ आ रही है. एंड एम हैमिल स्टार्टेड विद राइटिंग. पहले उन्होंने ग्रामर कराया, देन ही वेंट ऑन टू राइटिंग. और राइटिंग के लिए उन्होंने नोटबुक्स लेकर आए थे सारी क्लास के लिए, और उन नोटबुक्स पे उन्होंने क्या लिख रखा था,
फ्रांस एल्सेस। और ऐसा लग रहा था, उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करी, ऐसा लग रहा था द फ्लैग ऑफ फ्रांस इज होइस्टिंग ऑन द डेस्क ऑफ एवरीवन। एंड द लिटिल चिल्ड्रन दे वर डूइंग ड्राइंग। किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास एक्सेप्ट फॉर द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ऑन द पेपर। कोई भी नहीं बोल रहा था। एवरीबडी वॉज सो सैड। Everybody was experienced that thing that from tomorrow onwards we will not be studying French. और छोटे बच्चे जो थे वो भी अपनी ड्राइंग में लगे हुए थे, even the littlest one. और उसके बाद में उन्होंने अपना बीटल एंटर्ड द क्लास। क्या होता है जब क्लास में कोई इंसेक्ट आता है या कोई ऐसी फ्लाई आती है तो आप क्या करते हैं, सबकी जो आइज़ होती हैं उसी की डायरेक्शन को फॉलो करती हैं कि कहाँ जा रहा है। और उनकी क्लास में भी एक बीटल आ गया, पर वो उनको कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि सब लोग लिखने में कुछ ना कुछ लगे हुए थे। जो यहाँ पर जितने भी जो ये बैठे हुए थे विलेजर्स, दे हैड टीयर्स इन देयर आइज, दे वर रीडिंग द प्राइमर। उसके बाद उन्होंने कोरस सॉन्ग किया छोटे बच्चों का। द हॉसर ही वॉज ऑल्सो सिंगिंग अलॉन्ग विद दैट, ही वॉज ऑल्सो रिसाइटिंग इट एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आइज, ही हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। और पूरा जो एनवायरनमेंट था दैट हैड बिकम वेरी वेरी सैड। आफ्टर हिज टीचिंग एंड देन he said that okay, he could hear M. Hamel could hear the things being packed into the box, कि बॉक्स में कुछ ऊपर पैक हो रहा है। तो उसको समझ में आया कि his sister was upstairs and he was packing because they had to leave the country the very next day. Because he was a French teacher and now French would not be taught, so he had to leave the country. And while this, and he was wondering that the pigeons were sitting on the roof and they were cooing, and he was thinking कि क्या है ये, क्या सोच रहे हैं, क्या ये pigeons को भी इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जर्मन में ही कू करेंगे। What Franz wanted to say here is that you can physically empower a person but not mentally. क्योंकि यहाँ पे जब एम हैमेल समझा रहे हैं तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया, अपनी जो मदर टंग थी जो वो पढ़ाते थे, कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पैट्रियोटिक थे टू द कोर, देशभक्त थे। इट इज़ द मोस्ट क्लियर एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड सो फार वी होल्ड ऑन टू दिस लैंग्वेज, नोबडी कैन मेक अस अ स्लेव। कोई हमें स्लेव नहीं बना सकता, कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता जब तक हम अपनी लैंग्वेज को पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमें इम्प्रिजन कर लेंगे। हमसे वो कहेंगे कि जर्मन में बात करो, पर हम लोग तो आपस में फ्रेंच में बोल सकते हैं अगर हमें अच्छी तरह से आती है, और हम स्ट्रेटजीज डिवाइस कर सकते हैं। सो ही सेड दैट लैंग्वेज इज़ द की टू द प्रिजन। जो मदर टंग थी, मदर टंग के बारे में उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज, और ये सभी लोगों को वर्ल्ड में अपनी मदर टंग से प्यार करना चाहिए। हम उन लीडर्स पे देखिए बेटा कितने खुश होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके हिंदी में बोलते हैं, प्रमोट कर रहे हैं हिंदी। शर्म नहीं आ रही हिंदी बोलने में? कई लोगों को कितनी शर्म आती है कि अच्छा वो सारे इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम हिंदी में बोलेंगे तो कैसा लगेगा। कैसा भी नहीं लगना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ योर मदर टंग। यू शुड रिस्पेक्ट योर मदर टंग। ये हमारी अपनी चॉइस तो थी नहीं, वी आर बॉर्न इन इंडिया, और हिंदी हमारी मदर टंग है और हमें उसको बहुत अच्छी तरह से बोलना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने अपने उसके बारे में बताया। पढ़ाने के बाद में देन द क्लॉक स्ट्रक 12 इन द टाउन हॉल। चर्च जो क्लॉक थी वो उसने 12 करा, और उसके बाद में जो एग्नस था उसका भी बेल बजी, and he decided, and they could hear the Prussian soldiers returning from the drilling, and M. Hamel stood from his chair with a long face। और फ्रेंड्स कहता है कि आज से पहले मैंने उनको इतना टॉल नहीं देखा। टॉल क्यों हो गए थे? अचानक हाइट थोड़ी बढ़ जाती है। बट व्हेन यू आर अनहैप्पी योर फेस बिकम्स लॉन्ग, पेल हो जाता है फेस, लॉन्ग हो जाता है। तो उसने बोला कि वहाँ पे खड़े होके ही स्टूड देयर एंड ही कुड नॉट राइट एनीथिंग बट ही सिंपली राइट लॉन्ग लिव फ्रांस, वाइवा लीव फ्रांस। अपने उसको प्रमोट करने, अपनी कंट्री के लिए वो कितना ज़्यादा ही वॉज पैट्रियोटिक टू द हार्ट। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट।
and because he could not speak anything after that, his throat choked, और पूरा इतना इमोशनल हो गए थे कि उन्होंने उनका थ्रोट जो था वो चोक कर गया और उन्होंने सबको इशारे से बोला डिसमिस, द क्लास इज़ ओवर एंड लॉन्ग लिव फ्रांस, एंड ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल. So this is the story all about. After this lecture, go back to your Flamingo, read the lesson, because for MCQ everything is quite important. And before I leave, the homework. Why was Franz reluctant to go to school? He was not prepared with the participles test, that's why. What temptation stopped him? ये मैंने आपको बताया, जिसमें आप लिखेंगे the day was warm and bright, the birds were chirping on the trees and the Prussian soldiers were drilling. What was unusual? ये हम कई बार कर चुके, ये सारे points आप देंगे unusual में. Whom did M. Hamel blame for not learning a lesson? Students, parents and teachers. इसके लिए blame करा. So after this, go back to the PDF that I have given you and go through all the question answers in detail and be ready for the lesson. Thank you very much. Have a good day.